write down the next sentence in which chapter? Can anybody tell me? Future continuous. Good. What was the first sentence, Neha? So the first sentence was बेटा पंखा बंद कर दो अगर पंखा बंद नहीं करोगे तो दिन भर चलता रहेगा Good. अब तुम यही सवाल नेहा निधि से करके देखो. दीदी what is the first sentence The first sentence is बेटा पंखा बंद कर दो. Sir, I have निधि. to ask the next question. No. Ask the same question to Mini. Okay. Meaning, what is the first sentence? The what is na? The first sentence is बेटा पंखा बंद कर दो. Sir, what is the first sentence? The first sentence is, beta, switch off the fan. If you don't switch off the fan, it will be running whole the day. Sir, पहला वाक्य क्या है? अब उसकी जरूरत रह नहीं गई है. तुम भी शायद भूल गए चीजों को. हमें पता तो रहता है सेंटेंस हमने कौन सा दिया है. हमारी कोशिश रहती है कि तुम्हारे मुंह से एक बार वो सेंटेंस इस बहाने और निकलवा ले. द नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम जिंदगी भर रोते रहोगे? मिनी, यू शुड ट्राई. Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence is related to future continuous tense. It is an inverted sentence. कैसे पहचानना ये इन्वर्टेड सेंटेंस? सर हिंदी वाक्यों में इस मतलब वाक्य के शुरू में क्या देखकर ये पहचानते हैं कि ये इन्वर्टेड सेंटेंस है. अब थोड़ा सा हम आज से एक कोशिश और करते हैं. इसी सवाल को इंग्लिश में पूछते हैं क्योंकि ये टेस्ट सिखा दिया है हमने. मिनी, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज दिस इज इन्वर्टेड? Sir, I recognized this is inverted sentence. Uh, With the help of with the help of क्या? क्या? At first. At first. I recognized this sentence is inverted sentence uh, with the help of क्या? My second question goes to you. Sir, एक मिनट पहले पूछ लेने दो. इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम क्या है? सर इन्वर्टेड सेंटेंस बनाने का नियम है सब्जेक्ट के बाद वाले शब्द को उठाकर सब्जेक्ट के पहले रख देते हैं. अब इसका इंग्लिश हम नहीं कर रहे हैं. गो अहेड. Yes, sir. So firstly, I will take the helping verb, and the helping verb is will. Um, uh, Thereafter, I will take subject अब and यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं. मैंने okay, sir. निधि, तुम इसको कैसे बोलती? Yes. Sir, I could not listen. मैं इसे कैसा बोलती? तुम इस Firstly, I will take. Firstly, I will take the helping verb. First helping verb यस यस. and the. अब रुक जाओ. अब उसको बोल लेने दो. Okay. So firstly, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Thereafter, I will take the second helping verb, and the second helping verb is we.
Thereafter, I will take main verb, and main verb is cry. There is a little mistake, Mini. Think a There- little and Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form, बच्चों फॉर्मूला जो लिखवाते हैं उसका उद्देश्य यही है कि तुम उसको सेंटेंस बनाते समय प्रयोग करो. yes, sir. And the first form of the verb is cry. Thereafter, I will take ing. ing. हाँ. तो ऐसे बोलना अगली बार से एक बार हमारे साथ बोल दो. Yes, And sir. I will put ing. ing. इसका मतलब होता है मैं ing लगाऊंगी या लगाऊंगा. Thereafter, I will put ing. Thereafter, I will take preposition, and the preposition is for. ठीक है. Thereafter, I will take article, and the article is the. Thereafter, I will take rest of. Uh, Thereafter, I will take object, and the object is rest. Thereafter, I will take second preposition, and second preposition is of. Thereafter, I will take extension, and the extension is life. Something is wrong, Mini, but you have spoken इतनी सारी English. Now, let me give this chance to somebody else. Now, who else wanna try? Nidhi, you can go ahead. Nisha is not here. Sir, I have to make this sentence. This sentence is related to future continuous tense. It is an inverted sentence. Firstly, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Thereafter, I will take the subject, and the subject is you. Later on, I will take the second helping verb, and the second helping verb is be. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is cry. And I will put ing. And lastly, I will take the extension, and the extension is entire the life there. अब ये हिंदी पिछले वाक्य में भी था, इसमें भी है. तो हो सकता है तुम्हारे मन में किसी के मन में सवाल आया होगा कि एक ही वर्ड को क्यों रिपीट कर रहे हैं सर. पिछली बार भी था, इस बार भी है. उसमें था दिन भर, इसमें है जिंदगी भर. तो यहाँ पे एक नया शब्द देने के लिए हम रिपीट नहीं कर रहे हैं. उसमें होल द डे दिया था. Sir, that's why I kept extension. You told us yesterday. Otherwise, I will I will add today object. I will say today object. You हाँ, told us. मतलब इन बच्चों से हमें ये वाली गलती की उम्मीद नहीं थी कि कल ही सेंटेंस बनाया है, उसमें अपन एक्सटेंशन रखा था, तो आज भी वो एक्सटेंशन ही है. चलिए हम इसमें सब्जेक्ट बदल के खेलते हैं, क्योंकि यू से अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी उत्तर देना. तो हम शुरुआत करते हैं मिनी से. मिनी, विल मुन्नी बी क्राइंग एंटायर द लाइफ? Yes, sir. Munni will be crying entire the life. क्या मुन्नी जिंदगी भर रोती रहेगी? हाँ सर, मुन्नी जिंदगी भर रोती रहेगी.
Why will she be crying entire the life? Sir, she will be crying uh, entire the life because सर पता नहीं. अगली बार उत्तर देना, कुछ सोच के रखना। अभी हम सिंगल पूरा घुमा देते हैं, तुम भी सिंगल क्वेश्चन पूछ लो, और अगर सामने वाला बोले कि आई एम रेडी टू गिव सेकेंड आंसर, तो उससे सेकेंड क्वेश्चन। निधि दी, will she be crying entire the life? Yes, Stevie will be crying entire the life. डी, क्या शिवी जिंदगी भर रोते रहेगी? हाँ, Stevie जिंदगी भर रोती रहेगी. डी आर रेडी फॉर सेकेंड आंसर? Yeah, of course. The why will Shivi be crying entire the life? Because uh, because uh, because she is miser. That's why. The शिवी जिंदगी भर क्यों रोते रहेगी? क्योंकि वो कंजूस है यार, इसलिए. नेहा, will फिरंगी be crying entire the life? Yes, yes, of course. The Firangi will be crying entire the life. नेहा, Complete आर the यू रेडी process. फॉर The सेकंड आंसर? ओके. नेहा, क्या फिरंगी जिंदगी भर रोते रहेंगे? हाँ बिल्कुल दी, फिरंगी जिंदगी भर रोते रहेंगे. आई वॉजंट, यू सर, कैन आंसर, यस। ओके सर. Will Rakhi be crying entire the life? यस, शी विल बी क्राइंग एंटायर द लाइफ। सर, क्या राखी जिंदगी भर रोती रहेगी? हाँ, वो जिंदगी भर रोती रहेगी। How will Rakhi be crying entire the life? Rakhi will be crying entire the life like this. चलो निधि, पहले हम तुम्हारे, लेकिन तुमने एक गलत तरीका स्टार्ट किया था, हमने उसको सुधार दिया। अगर तुम लोगों ने हमारी एक्टिंग पे पूरा फोकस ना किया और हमारे आंसर में भी फोकस किया हो, तो हमने बिकॉज को कंजंक्शन की जगह ही लगाया था, उससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया था। तो चलो, तुमसे वो वाला, तुम जवाब देने के लिए तैयार हो तो वो दोनों सवाल तुमसे कर लेते हैं। निधि, विल फिरंगी बी वीपिंग एंटायर द लाइफ? यस सर. फिरंगी will be weeping entire the life. क्या फिरंगी जिंदगी भर रोते रहेंगे? हाँ सर, फिरंगी जिंदगी भर रोते रहेंगे. Why will they be crying entire the life? They will be प्रोनाउन रख they दिया will और कुछ नहीं किया। हाँ, they will be crying entire the life because the queen of Jhansi came. फिरंगी जिंदगी भर क्यों रोते रहेंगे? सर, फिरंगी जिंदगी भर रोते रहेंगे क्योंकि झांसी की रानी आई थी. That's why. चलो निधि, अपन कुछ छोटे से छोटे आंसर या जितने चैप्टर सिखाए हैं उससे अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो इनके दिमाग में झंझनाहट पहुंचेगी। Sir, will Raman be weeping entire the life? यस, ही विल बी वीपिंग एंटायर द लाइफ। सर, क्या रमन जिंदगी भर रोते रहेगा? हाँ, वो जिंदगी भर रोता रहेगा। सर, why will he be weeping entire the life? वेल मिनी, रमन इज अ narrow minded person, that's why he will be weeping entire the life। सर, वह जिंदगी भर क्यों रोते रहेगा? दरअसल रमन संकीर्ण मनोवृत्ति वाला बंदा है, बिल्कुल संकुचित मानसिकता है उसकी, छोटी सोच है, इसलिए वो जिंदगी भर रोता रहेगा।
अब हमने बी चैप्टर यूज किया, बिकॉज ही इज नैरो माइंडेड पर्सन। बस ये शब्द बस हमने कुछ अच्छा सा ले लिया जो तुम लोग को नहीं लिखवा है। अब तुम चाहो तो अपने वर्ड मीनिंग वाले पेज को खोल लो, वहां से कोई एक ऐसा शब्द रख सकते हो जो वहां सूट करता है। विल दूध वाला बी क्राइंग इंटर द लाइफ? Yes, he will be crying entire the life. सर क्या दूध वाला जिंदगी भर रोता रहेगा? हाँ, वो जिंदगी भर रोता रहेगा। वाई विल दूध वाला बी क्राइंग इंटर द लाइफ? Actually, he will be crying entire the life because he is not hard working person. सर दूध वाला क्यों जिंदगी भर रोता रहेगा? वो इसलिए जिंदगी भर रोता रहेगा क्योंकि वो परिश्रमी नहीं है। He buys milk from somebody else and sells. वो दूसरों से दूध खरीदता है और बेचता है। He is not trying to buy one buffalo. वो एक भैंस खरीदने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। Will Ukrainian be crying entire the life? Yes, Ukrainian will be crying entire the life. क्या यूक्रेन के निवासी जिंदगी भर रोते रहेंगे? हाँ सर, यूक्रेन के निवासी जिंदगी भर रोते रहेंगे। Why will they be weeping entire the life? If bar uh, goes on Yes. over there, uh, uh, Ukrainian will be weeping entire the life. यूक्रेन के निवासी जिंदगी भर क्यों रोते रहेंगे? सर यदि युद्ध वहां पे चलता रहेगा तो यूक्रेन के निवासी जिंदगी भर रोते रहेंगे। ये हिंदी भी लिख दिया है निशा नेहा। ये हु इज रेडी फॉर आंसरिंग टू आंसर? फॉर आंसरिंग गलत नहीं है ग्रामर की दृष्टि से निधि, लेकिन एक अच्छा नियम है टू से जोड़ना, तो उसका प्रयोग गुड। यही हम बोलते हैं कि गलती करना पाप नहीं है, गलती करो खूब करो, लेकिन एक गलती बार बार मत करो। चलो इसको हम रोक देते हैं, तुम लोग सोच लेना, कल इसके लिए कुछ जवाब तैयार रखना, ठीक है? राइट डाउन द नेक्स्ट सेंटेंस। मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाता रहूंगा। जरा हम निशा से एक बार बुलवा लेते। निशा, 2 क्वेश्चन तुम हमसे करो। इस बार निधि हम अफर्मेटिव आंसर देंगे। Sir, will Guddu be weeping entire the life? No, Guddu will not be weeping entire the life. सर क्या गुड्डू जिंदगी भर रोते रहेगा? नहीं, गुड्डू जिंदगी भर नहीं रोता रहेगा। Why will Guddu not be? फिर सर सेकेंड हेल्पिंग वर्ब रखो तो। Why will Guddu be Guddu not be weeping entire the life? देखो कंफ्यूजन है ना। कोई भी सेंटेंस लेना भी जो अफर्मेटिव हो, उसको बड़े आराम से नियम से कोई भी सेंटेंस लेके एक सेंटेंस अपने मन से बनाना, और पहली हेल्पिंग वर्ब को उठा के सामने रख देना, उसको पूरा लिख लेना, फिर एक नेगेटिव बनाना और उसके आगे वाई लगा देना। खुद करके देखना, बच जाएगा। अब
अपने आप उत्तर मिल जाएगा, कठिन नहीं है। सर एक्चुअली फर्स्ट टाइम हुआ है इतने दिनों में, मतलब WH के साथ ना। नहीं, ये दो हेल्पिंग वर्ब आ गई ना बेटा, दो आ गई तो वो दिक्कत कर रही है, आदत है नहीं है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। तो तुम चाहो तो व्हाट्सएप में पहले अपने किसी पेपर पे बना लेना, फिर उसको व्हाट्सएप पे टाइप करके भेजना। अगर उसमें गलती नजर आई तो हम बता देंगे, वैसे होगी नहीं। जब क्रम से करोगे, एक अफर्मेटिव बनाओ, फिर दूसरा उसका इन्वर्टेड बनाओ, फिर उसके आगे WH लगा के देखो, फिर एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ, जैसे विल यू नॉट बी कमिंग, कुछ भी बनाओ अपने मन से, फिर उसके आगे WH चिपका दो, अपने आप वो सही जाएगा, बिल्कुल 100% सही। तो हम तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। गुड्डू विल नॉट बी वीपिंग एंटायर द लाइफ बिकॉज ही इज स्ट्रॉन्ग बॉय। सर गुड्डू जिंदगी भर क्यों नहीं रोएगा? गुड्डू जिंदगी भर इसलिए नहीं रोता रहेगा क्योंकि वो मजबूत बंदा है, ही इज ए स्ट्रॉन्ग बॉय, मजबूत लड़का है। तो चलो आज यहाँ पे इसको विराम दे देते हैं। इट इज 8:32। सर एक और ये वाला बना लें क्या? ये वाला दिस वन। चलो बना लो। बट सर आई एम लीविंग। और ओके तो फिर लीविंग। ओके थैंक यू सर।